آ, کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے ان سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے؟ فرمایا کوئی تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، تعلقات توڑے تو جوڑ لو، کوئی تمہیں محروم کرے تو اسے نواز دو، کسی سے انتقام لینا ہو تو درگزر کر دو، غصے میں ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، یہ علم ہے۔ جزاک اللہ کہ ہم علم کو کیا لیتے ہیں اور اصل میں علم ہے کیا؟ وہ علم جس پر ہم عمل نہ کریں ایک ایسے جانور پہ لاتے ہوئے بوجھ کی طرح ہے جس کا نہ تو لیکن کہ اس کا ایسا کوئی کسی کو نہیں ہے کہ اس جانور پہ بس بوجھ ہی لاتا گیا ہے، اس کو کوئی اور اس سے نفع نہیں پہنچایا گیا۔ تو آج ہمارا ٹاپک پر ڈسکشن ہے کہ سورسز آف نالج، گریک فلاسفرز پرسپیکٹو آن ایجوکیشن کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں سے میں آپ لوگوں سے اسٹارٹ کر رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں نالج کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یس کلاس اسٹارٹ، اور آج ٹمورو از آف، تو کائنڈلی آج تم لوگ مجھے بڑے ایکٹیو نظر آؤ کہ فرام ویئر وی کین گیٹ دا نالج، کہ ہمیں نالج کہاں کہاں سے، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا جو ہے وہ علم ہے، کلیئر؟ اور ہم اب کہتے ہیں کہ ہم علم اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اب یہ نہیں پاسبل کہ ایک بندہ ہر چیز کے علم پہ کو حاصل کر لے۔ تو ہمارے اس سیشن کی جو ہے نا، آفٹر ریڈنگ دس یونٹ ہم یو ول بی ایبل ٹو describe the significance of different sources of knowledge۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں اٹ مینس کہ نالج کے سورس فرق ہوں گے، جو علم ہوگا اس کے سورسز زیادہ ہوں گے، ہم بہت طریقوں سے علم حاصل کر سکتے ہوں گے، اور ہمارے علم کے ذرائع بھی فرق ہوں گے۔ ڈفرینس بٹوین دا سورسز آف نالج، ڈفرینشیٹ بٹوین ڈفرینٹ سورسز آف نالج اینڈ آئیڈینٹیفائی دا ریلائبل سورس آف نالج۔ کہ ابھی تک یعنی کہ اب میں اگر آپ لوگوں سے اس ٹائم پہ کوشچن کروں، ابھی ہم نے اپنے سیشن کا آغاز نہیں کیا، کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم جو نالج ہے وہ کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ پلیز ہری آپ، اگر نہیں بھی پتا تو آپ لوگ یو کین رائٹ کہ فرام ویئر وی کین گیٹ دا نالج، واٹ آر دا سورسز آف نالج؟ ہاں، بکس فرام فائیو سینسز بھی ہم نالج حاصل کرتے ہیں، گڈ۔ انٹرنیٹ سے بھی ہم نالج حاصل کرتے ہیں، لیکن کاتب بخش انٹرنیٹ پہ نالج کہاں سے آتا ہے؟ بکس سے۔ بکس میں نالج کہاں سے آتا ہے؟ ہماری فائیو سینسز سے۔ ہماری فائیو سینسز تو ایک قسم کا نالج ہی دے سکتی ہیں نا، ایون فرام آور انوائرمنٹ۔ یس 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 یس، لیکن نہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہیں جہاں سے وی کین گیٹ دا نالج۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کہیں کہ what is the knowledge؟ Knowledge is the awareness and understanding of a particular aspect of reality۔ ہم کوئی بھی ریئلٹی ہے اس کا کوئی اسپیکٹ کو جانتے ہیں، دیٹ از دا نالج ہوتا ہے، لاجک انفارمیشن ہوتی ہیں، اور ہم اسے کسی ریزن کے پروسیس سے حاصل کرتے ہیں اور ہم ریئلٹی تک پہنچ جاتی ہیں۔ Knowledge is the initial point of philosophical discussion for ہم فلسفیکل، جب ہم فلسفی کی بات کرتے ہیں، لو آف وزڈم، لو آف ریئلٹی، کیا ہم فلسفی سے ہم اپنے ہڈن ریئلٹیز کو جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب کہ ہم جس ڈسکشن میں پڑھ رہے ہیں نا کہ نالج کیا ہے، جو فلاسفرز جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس نالج کو ہی ڈھونڈتے آ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کیا۔ اور فلسفی آلسو اسٹرائیوز ٹو فائنڈ دا آنسرز آف دا کوسچن what is the source that provide them with the stream of the thought and knowledge۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے بکس میں نالج ہے، اگر ہمارے انٹرنیٹ میں نالج ہے، تو وہ نالج ہم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کلیئر؟ تو اب ہم سورسز کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو نالج ہوتا ہے دیٹ از دا ریویلڈ نالج، جو نالج ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس انٹیوشن، الہام، ان کو ہم ڈسکس ون بائی ون کے دن اتھارٹی، ریشنل، لاجک، ایمپیریکل
जो नीचे है और उसके हम सोर्सेज अब सबसे पहले हमने हाँ ये रिवील नॉलेज, और हम आपके ही पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नॉलेज इज बेस्ड ऑन द रेवलेशन फ्रॉम सम सुपरनैचुरल सेलेस्टियल भी है कि वहां से अब देखिए ना, कभी हम अपने आप को ऐसे लेके, जैसे हिंदू कहते हैं ना कि आपका अल्लाह नजर नहीं आता, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम लोगों का अल्लाह है, उसका कोई वजूद है, जब उस अल्लाह का कोई फिजिकल नहीं है वजूद ही ना, हम उसे देखते हैं, हम तो अपने बुतों को देखते ही है ना, तो फिर हम उनसे, तो यही है कि वो नॉलेज जो किसी सुपर नेचुरल चीज से आया हो, उसे हम कहते हैं डेट इज द रिवील नॉलेज, समथिंग टू रिलेट विथ रिलीजन, और वो हमारे रिलीजन से भी रिलेट करती है। जैसे हमारा रिलीजन 1400 साल पहले की चीजें जब हम अब पढ़ते हैं और मुकम्मल कुरान पाक हमें तमाम बातों की अक्कासी करता है, उसमें हर चीज क़यामत तक के लिए लिख दी गई है। आप देखिए कुरान पाक की जो बातें अगर हमारी ये रिवील नॉलेज है ना, तो आप देखिए कुरान पाक की जो बातें 1400 साल पहले बताई गई थी, वो बातें अब भी हो रही हैं। कहा जाता था ना कि एक वक्त आएगा जब औरतें मर्दों की तरह और मर्द औरतों की तरह फैशन करना शुरू कर देंगे, तो अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। एक वक्त आएगा कि जमीन पर पानी की कमी हो जाएगी, और वो चीज अब भी हो रही है। दिस वन इज अ रिवील नॉलेज, बहुत अरसे पहले भेज दिया गया, लेकिन उसका हम आजकल भी देखें तो वो चीजें, उसके अलावा बहुत से हम अपनी लाइफ के देखें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उन चीजों का सबूत फराहम कर रही हैं। Basis for phenomenal properties as well as belief in God के अब knowledge that exists independent of human conception, कि वो ह्यूमन कॉन्सेप्शन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और गॉड इंस्पायर्ड सर्टन मैन टू राइट डाउन द ट्रूथ दैट ही रिवील टू देम, कि अल्लाह ताला ने कुछ ही लोगों को इंस्पायर किया है कि वो उन ट्रूथ्स को लिखें जो उसने उन तक एक्सटर्नल नॉलेज हु profess this knowledge totally surrendered oneself to the source of such revelation. Supernatural being is eternally superior and cannot be said to lie or make a mistake. यानी कि ये नॉलेज जो हमें हासिल होता है, जैसे अल्लाह ताला ने इनके कुरान पाक को भेजा और उसे क़यामत तक उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद किया कि उसमें ज़ेर ज़बर की कोई गलती नहीं होगी। लेकिन इन जो सुपर नेचुरल नॉलेज होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसमें कोई मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। उनके जैसे ये नॉलेज रिवील्ड नॉलेज जो है इज दैट स्पेशल नॉलेज विद विच दिस यूनिवर्स एंड द प्रोसीडिंग यूनिवर्स, कि ये कायनात आने वाली जो इससे प्रोसीड हो रही है कायनात, एंड द यूनिवर्स इन द मेकिंग, कि ये यूनिवर्स जो जैसे बनी, एंड द यूनिवर्स येट टू बी मेड, और यूनिवर्स जैसे आगे बनेगी, आर फॉर्म सस्टेन्ड एंड अल्टीमेटली डिसॉल्व। तो इनकी सारी निशानियां हमें रिवील नॉलेज में मिलगी। जो रिवील नॉलेज है उसके तहत गॉड हैज डिस्क्लोज्ड टू मैन, अ गॉड इंस्पायर्ड सर्टेन मैन टू राइट डाउन द ट्रूथ दैट ही रिसीव्ड देम सो दैट दीज ट्रूथ्स माइट बी नोन देयर आफ्टर बाय ऑल मैनकाइंड। उसने कुछ आदमी चुने जिन पे इन सच्चाई को उतारा गया, और उसके बाद तमाम जो इंसान है ना उसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना इन इस्लामिक ट्रेडिशन कुरान इज हेल्ड टू बी एन अथॉरिटेटिव एंड रिवील्ड सोर्स ऑफ नॉलेज, जिनके कुरान हमारा अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ नॉलेज भी है, और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये रिवील्ड नॉलेज। इसी तरह क्रिश्चियन फोल्ड में क्रिश्चियंस कहते हैं कि कुछ ड्रीम्स, कुछ उनके विजन, और इवन उनकी जो बाइबल है, दे हैव कम टू द एक्सेप्टेड एज फॉर्म्स ऑफ रिवील, जिन्हें वो देख लेते हैं या उनके बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भी वो कहते हैं कि दिस वन इज आल्सो ए रिवील नॉलेज। जो रिवील नॉलेज है जैसे वही इज फ्रॉम गॉड इन एवरी रिवील्ड मैसेज, हमेशा जो उसमें एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट होता है और एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है। जैसे अल्लाह ताला ने जब रिवील नॉलेज यानी कुरान पाक की जो पहली वही थी ना, उसका था रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड
all that exists. He has created man from a clod, reed, and thy Lord is the most gracious, who has taught by the pen. He has taught man what he knew not. कि रिवील नॉलेज में जो पहली वही थी उसमें यही था कि इंसान को उन चीजों का बताया गया और उसको खून के एक लोथड़े से पैदा किया गया और उसे उन चीजों का इल्म अता किया गया जो उसे उससे पहले इन चीजों का इल्म नहीं था। तो हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज में सबसे रिवील नॉलेज में और इसी तरह अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहा है कि अगर आपके पास किसी चीज का इल्म नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई बहस ना करो। एंड फॉलो नॉट ओ मैन सी नॉट डू नॉट विटनेस नॉट of which you have no knowledge. Verily, the hearing and the sight and the heart of each of those one will be questioned by Allah. कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में कोई बात कर रही हैं, तो अल्लाह ताला उसका हमसे हिसाब किताब भी लेगा। क्लियर? और इसी तरह ये भी कहा गया, द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु लर्न्स द कुरान एंड टीचेस इट। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1400 साल पहले हमें क़यामत तक की तमाम चीज़ों के बारे में, अब देखिए ना, जैसे साइंस है वो बहुत सी चीज़ों को अब प्रूव कर रही है और हमें उन चीज़ों का 1400 साल पहले पता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप लोगों ने जब पानी पीना है तो 3 घूंट में पीना है, तो वो हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा दूर करेगा। लेकिन यही बात हमें 1400 साल पहले पता चल गई। इसके अलावा कि जब हम हमारे सारा दिन हमारे जिस्म के अंदर बहुत सी रेज होती हैं, तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वो सारी सजदे के दौरान हमारे जिस्म के अंदर से सारी रेज ज़मीन अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये भी दिस वन इज आल्सो है कि हमें वो चीज़ें बता दी गई और फिर उन पे गौर फिक्र करने का मौका दे दिया गया कि चलो ए इंसान तुम इन चीज़ों पे गौर फिक्र करो। तो हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज जहाँ से हमने इल्म हासिल किया है, दैट आर नॉट बुक्स, दैट इज द रिवील्ड। और उस रिवील की सबसे बड़ी निशानी हमारे पास कुरान पाक की सूरत में हमारे पास है। अगर हम कुरान पाक का तर्जुमा उसको समझें तो हमें अपनी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। क्लियर? रिवील नॉलेज जिनकी जो वही है उसके लिए सुपरनेचुरल आने वाला नॉलेज जो है, दैट इज द रिवील। In the Islamic tradition, the Quran is held to be an authoritative and revealed source of knowledge. इसी तरह क्रिश्चियन में भी ड्रीम्स है, विजन है। रिवील नॉलेज इज एसोसिएटेड विद द इंटरपर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस, जिनके अल्लाह ताला की तरफ से जो मैसेजेस हमें होते थे वो रिवील नॉलेज के जरिए। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्लासरूम सिचुएशन एज टीचर कैन नॉट इम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज बेस्ड ऑन रेवलेशन। इनकी क्लासरूम में तो हमारे पास ये है ना कि हमारे पास नॉलेज, हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये रिवील, उसमें कुछ चीज़ें बता दी गई और उनको हम क्लासरूम में अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि यस ओके आयशा एनी वन एल्स, कि रिवील नॉलेज जो वही है ना वो अल्लाह ताला ने किसी सुपर नहीं, कि अभी हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते लेकिन अल्लाह ताला हमें हर चीज़ में देखता है। कुरान पाक जिससे कुरान पाक आया, जैसे कुरान पाक नबी पाक जब हज़रत जिब्राइल लेके वही आया करते थे और नबी पाक को फ़ौरन याद कर लिया करते थे और फिर वो कुछ कातीन उसको लिख लिया करते थे और उसे महफूज कर लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वही है और वही को रिवील नॉलेज कहते हैं। तो हमारा पहला सोर्स ऑफ नॉलेज जो है दैट इज द रिवील नॉलेज। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन about revealed knowledge? ये मैंने metaphysical, the metaphysical teaches the nature of the divinity unity. The physical provides a code of behavior. Revealed knowledge comes from a supernatural entity. Allah created man and provided him with the tools for acquiring knowledge, namely hearing, sight and wisdom. यानी कि वो कहते हैं अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसे सेंसेस भी दे दी कि उस
सेंसेस को हम कहते हैं कि वो उसकी ऑब्जर्वेशन है, 5 सेंसेस, और समटाइम्स हम कहते हैं कि वी हैव द 6 सेंस। हाउ मेनी टाइप्स, क्या मतलब ये सोर्सेस ऑफ नॉलेज की आगे टाइप्स हैं, लेकिन रिवील नॉलेज तो हम हमारे पास अल्लाह ताला की वही की सूरत में ही आता है ना। और इनकी जैसे हमारी जो 4 किताबें थी, लेकिन उनमें से सिर्फ कुरान पाक अपनी सही हालत में है। Allah says, and Allah has brought you from the wombs of your mother while you know nothing. यानी कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को तुम लोगों की माओं के रहम से पैदा किया जहाँ तुम लोग कुछ नहीं जानते थे, and He gave you hearing, sight and hearts that you might give thanks to Allah. कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सुनने देखने की सलाहियत दी ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। असल में रीज़न ये है कि कहा जाता है कि हम अपनी रिवील्ड नॉलेज जो हमारे पास अल्लाह ताला ने किताब दी थी है ना, अगर हम उसके तर्जुमे को प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि अरबी में जो कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। क्लियर? तो उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरप्रेटिंग रैंडम इवेंट एज नॉन रैंडम इवेंट और बिलीविंग in magical events. For example, you may have not heard someone say bad things happen in threes. Uh, where does this come? Sometimes this one is the हमारा second जो source of knowledge है, that is the intuition. कभी तुम लोगों को किसी चीज का अल्हाम हुआ? अल्हाम क्या है? अल्हाम होता है, इसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं, क्या हमें अंदर से पता चल जाता है। इंट्यूशन के दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है, दैट इज द इंट्यूशन। क्लियर? अल्हाम हो जाता है। इंट्यूटिव नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन, फेथ या बिलीव। Human feelings plays greater role in intuitive knowledge compared to the reliance on facts. Intuitive knowledge involves direct and immediate recognition of the agreement or disagreement. रहमतुल्लाह इल्हाम और वसवसे में हम इंशाल्लाह ये इल्हाम करके उसके बाद हम वसवसे को क्लियर, वही फर्क है जो प्रॉब्लम और इशू में फर्क है। क्लियर? हम इसके बाद ये क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह मिलूंगी। अच्छा, ह्यूमन फीलिंग्स प्लेज ग्रेट रोल इन इंट्यूटिव। इनकी जो हमारी फीलिंग्स है ना, अच्छा समटाइम्स हमारे दिल को अचानक लग जाता है, हमारी अकल कुछ और सोच रही होती है और हमारा दिल कहता है नहीं ये ऐसे हो सकता है, या कभी कभी हम अचानक किसी चीज की घबरा, हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या ना। इट यील्ड्स परफेक्ट सर्टेनिटी बट is only rarely available to us. इनके लेकिन ये कभी कभी हमें पता चलता है। Intuition is a mode of knowledge depends on the basis of immediate apprehension. इनकी intuition से जो हमें knowledge मिलता है ना, वो अचानक हम कभी कहते हैं ना हमारी 5 सेंसेस है, तो समटाइम्स हमारी 6 सेंस हो जाती है, जिससे हमें इस चीज का इल्हाम हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये ऐसे हो गया। कभी कभी बैठे बैठे कोई काम हो रहा था और हमें अंदर से लग रहा होता नहीं ये गलत हो रहा है। क्लियर? कहते हैं कि that our knowledge of truth depends upon our intuitive knowledge, कि हमारा जो नॉलेज है ना, सारा नॉलेज उसकी वो डिपेंड करता है हमारे इंट्यूशन पे। This simply means that intuition is a way of knowing something that one cannot really explain because it transcends ordinary sense experience or reason. Intuition may occur as a sudden arrival of a solution to one's problem. Sometimes हमें कोई प्रॉब्लम हो रही होती है और हम कितनी देर उसके लिए टेंशन में रहते हैं, हम बहुत सा टाइम, बहुत सी एनर्जी, बहुत सी स्ट्रगल, लेकिन अचानक हमारे ज़हन में क्लिक हो जाता है कि यस वी कैन डू दिस वे। क्लियर? तो इसे इंट्यूशन कहते हैं। या समटाइम्स कोई पजल हो रही, पजल है वो हमसे हल नहीं हो रही होती है और अचानक हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, वो भी कि हमें लगा कि ऐसे होगा, हमें लगा कि ये काम ऐसे हो जाएगा, तो दैट इज द इंट्यूशन। For some hours or days without arriving at the solution. Intuitive knowledge cannot be verified by the senses or the intellect. ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमें इल्हाम होता है ना, उसे हम किसी चीज से चेक नहीं कर सकते ना, वो हमारी अकल जो है उसे कि हाँ ऐसे भी
समटाइम्स हम कहते हैं ना मुझे इल्हाम हो रहा है कि कुछ होने वाला है, या कोई कि मुझे इसका अच्छा हम में से कुछ कहते हैं ना हाँ हमें पहले ही पता चल गया। समटाइम्स कुछ लोग वो कहते हैं हाँ हाँ बताओ तुम्हारा क्या आइडिया, वो बताते हैं हाँ ऐसे हो, तुम्हें कैसे पता चला, मुझे इल्हाम हुआ, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो इंट्यूटिव नॉलेज कैनॉट, उसे हम अपने सेंसेस से वेरीफाई नहीं कर सकते। होता है, लेकिन ये देखिए ना आपका कोई काम है, वो कितना अरसे से वो काम नहीं हो रहा, तो अचानक क्लिकली तुम लोगों को उसका आंसर पता चल जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चल जाते हैं तुम लोगों को। और उसे ना तो वो हमारी सेंसेस की वजह से होता है, ना वो हमारे इंटेलेक्ट की वजह से होता है। The true knowledge that comes from beyond the intellect, and that is the intuitive knowledge. वो knowledge जो हो true, उनके हाँ कि हमारी कोई सिचुएशन है, हमारा कोई पर्सन है, हमारे पास कोई चीज है जिसको हम मालूम करना चाह रहे होते हैं, और जो हमारी अकल के बगैर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, हमारा नॉलेज हमें अचानक उस चीज के बारे में पता चल जाता है, हमें गाइडेंस आ जाती है कि हाँ हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए, हम इस ट्रैक पे चलना चाहिए या नीचे चाहिए, तो दैट इज द इंट्यूशन। और बहुत दफा हमें इल्हाम होता भी है, और हम अपने इल्हाम को मोस्टली रॉन्ग कर देते हैं, हम कहते नहीं ये ऐसे हो नहीं। अथॉरिटेरियन नॉलेज रिलाइज ऑन इंफॉर्मेशन, हम अभी इंट्यूटिव नॉलेज पे यही लगना शुरू हो जाता है कि जैसे ऐसा हो जाएगा। इनकी इंट्यूशन में इनकी होती है दिस इंट्यूशन इन्वॉल्व्स इमीडिएट इनसाइट, कि हमें अचानक किसी चीज का पता चलता है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, और इसे मोस्टली हम कहते हैं दिस वन इज द गट फीलिंग। ये गट फीलिंग है नॉलेज फ्रॉम समवेयर एंड विच यू कैनॉट रियली मेक आउट व्हाट इट इज। इनके जो नॉलेज आता है ना वो किसी जगह से जहां से भी आता है, उस जगह का हम बता नहीं सकते कि ये नॉलेज कहाँ से आया और किधर से आया, और हमारे पास उसकी कोई सॉलिड रीजनिंग, वी डोंट हैव एनी सॉलिड रीजनिंग फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम। समटाइम्स आवर इंटेलेक्ट आल्सो कहती है कि ये रॉन्ग है, व्हाट आई एम डूइंग टू द इंटेलेक्ट, हम अपनी अकल का को नहीं सुनते, वी जस्ट हम वही करते हैं जो हमें अंदर से लग रहा होता है ना। कि तुम लोगों में से कभी किसी ने फील किया, तुम लोगों को सब में से किसी को कभी फील हुआ ऐसे कि अकल कुछ और ही कह रही हो और अंदर से कुछ और इल्हाम हो रहा हो, और उस इल्हाम को हम नाम दे देते कि हमारा दिल ऐसे कर रहा है, क्योंकि हम मोस्टली अपने दिल को इल्जाम देते हैं ना। ये क्वेश्चन आप सबसे है कि तुम लोग दिल की बात सुनते हो, नहीं वो ज़मीर और इंटायरली डिफरेंट ना। तो अब तुम लोग दिल की बात सुनते हो या तुम लोग दिमाग की बात सुनते हो, लॉजिक की। समटाइम्स हम ये कहते हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज जो है इज सपोज टू बी ग्रेटर, फाइनर, हायर देन द mere exercise of reason, but we are not clearly define it can't be happen, यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि ये नॉलेज ये हम कहाँ से बोल रहे हैं। समटाइम्स ये कहते हैं ना बायोलॉजिस्ट कि हम दिल को ऐसे इल्जाम देते हैं, काम तो हर एक हमारा दिमाग करता है ना। तो इंट्यूशन भी यही है कि हमें समटाइम्स पता ही नहीं होता कि ये बात कहाँ से हो रही है और कैसे हो रही है ना। तो हमने दो पढ़े, पहला पहले हमें यही पता था कि हमें जो नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज क्या है, रियलिटी के बारे में, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने कहा कि वी गेट जस्ट फ्रॉम बुक्स, वी गेट फ्रॉम द इंटरनेट, बट इंटरनेट एंड बुक्स में भी तो कोई चीज डाली जाती है ना, तो वो कहाँ से इंसान लेता है। तो फर्स्ट वन इज रेवलेशन के रिवील नॉलेज हम लेते हैं, द सेकंड वन इज द इंट्यूशन कि हमने दिल की सुननी है, हमने दिमाग की सुननी है। एक्चुअली दिल कुछ नहीं होता, या दिमाग होता है, या हमारे अंदर अल्लाह ताला कुछ ना कुछ डाल देता है, या हमें कोई ना कोई इशारा मिल जाता है, या हम जब इस्तिखारा करते हैं तो दिल भी हमारा दिल उस टाइप चीज की तरफ आ जाता है, हमें इल्हाम हो जाता है उस चीज का, हमारी तो ये नॉलेज भी हम गेन कर देते हैं। लेकिन इस नॉलेज की कोई वो नहीं होती कि ये नॉलेज, हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉलेज हमने कहाँ से हासिल किया, और उसकी कोई सॉलिड रीजन नहीं होती कि फ्रॉम वेयर वी गेट दिस नॉलेज ना। तो कहते हैं कि इंट्यूशन जो है इट वुड serve as a servant without master, and if the master needs the servant, the former is ever more necessary to the later.
If he is to get in life, intuition is blind. The intellect lends its eyes on it. कहते हैं जो हमें इंट्यूशन होती है ना वो ब्लाइंड होता है, यानी कि हमें कोई होगा, लेकिन हमारी अक्ल जो है वो उसके ऊपर आंखें रखती है, तो देन हम किसी चीज को बिलीव करते हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकता है या ऐसा हुआ होगा. अच्छा, आई हैव टोल्ड यू, यस आई टोल्ड यू कि ये कैसा, आई मीन कि आप लोगों को रिवील्ड और इंट्यूशन दोनों क्लियर हो गए. रिवील्ड नॉलेज शबाना कहती हैं जी हमें रिवील्ड नॉलेज दोबारा बता दें. नॉलेज रिवील्ड जो नॉलेज है जो हमें किसी सुपर नेचुरल होती है कि जैसे आसमानी चीज से हमें जो नॉलेज हासिल हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कि रिवील्ड नॉलेज. द रिवील नॉलेज जो है वो हमें अल्लाह ताला पे अगर बिलीव है ना कि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला हमें ये चीज़ों की वही भेज रहा है, तो वो हमें रिवील नॉलेज इज दैट स्पेशल नॉलेज विद विच दिस यूनिवर्स की ये रिवील नॉलेज वो है कि जिसके तहत ये यूनिवर्स कैसे कायम हुई, आने वाली यूनिवर्स कैसे डेवलप हुई, आगे क्या होगा, तो वो सारा कुछ हम रिवील नॉलेज में रिवील नॉलेज हमें बताता है. तो रिवील नॉलेज में कि अल्लाह ताला ने सारा कुछ जो कुछ है होने वाला है और क़यामत वाली की निशानियां सारा कुछ इंसान को रिवील नॉलेज के जरिए बता दिया गया. शबाना ख्वाब में इशारा नहीं मिलता, ये रिवील वही जैसे अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी पाक पे वही उतारती और उस वही के जरिए हमें इस जिंदगी के तमाम चीजों के बारे में बता दिया कि क्या पहले जमानों में हुआ और उन जमानों के लोगों ने क्या क्या हरकतें की जिन जमानों की वजह से. ये भी नॉलेज क्या है ना कि हमें अल्लाह ताला की कुरान पाक की चीजों को स्टिल अभी हम समझ रहे हैं और उनकी बहुत सी बातों को साइंस अब प्रूव कर रही है जो कि 1400 साल पहले चीजें प्रूव हो चुकी हैं. क्लियर. ये स्पेशल ख्वाब में जो इशारा मिलता है ना वो समटाइम्स हमारा उसे हम अल्हाम ही दे सकते हैं कि वो हमें अंदर से पता चलता है ना. देखिए ना वो जो हमें इस्तिखारा मिलता है, इस्तिखारे में इशारा मिलता है या हमें पता चलता है, उसकी कोई बेस तो नहीं होती ना कि वो नॉलेज हमने कहाँ से हासिल किया, वो हमें अंदर से ही पता चल जाता है ना. हमें कोई इशारा मिल गया, हमें कोई लाइन मिल गई, हमें कोई रास्ता मिल गया, तो वो इंट्यूशन ही होता है. क्लियर. ओके शुक्र है, थैंक यू जी. वी आर मुस्लिम्स, अगर हम हमारे लिए ठीक है नहीं ठीक, तो एज अ मुस्लिम हम क्या करते हैं, इस्तिखारा की दुआ होती है और 2 रकत नफल पढ़ के फिर हम सो जाते हैं इस नीयत से कि अल्लाह ताला रात को ख्वाब में उस चीज़ से रिलेटेड हमें कोई इशारा दे देते हैं और मोस्टली ये इशारा अल्लाह ताला दे ही देता है. अगर एक दफ़ा इस्तिखारे में कोई आपको इशारा नहीं मिलता तो दूसरी दफ़ा आपको दूसरी या तीसरी दफ़ा भी आप कर सकते हैं, तो आपको कोई इशारा मिल जाता है तो हमें पता चलता है कि वो काम हमारे लिए ठीक है या नहीं. इसे इस्तिखारा कहते हैं. क्लियर. यस जी शबाना, इज एवरीथिंग क्लियर कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने रिवील नॉलेज में ये था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा था कि इंसान को मैंने वो बातें बता दी जिसका उसे इल्म नहीं था और उसने बहुत सी चीज़ें अपने सेंसेस के ज़रिए भी हासिल की. तो ये सारी चीज़ें कि हम रिवील नॉलेज है कि हमारी वही नॉलेज के सो हमारे जो हम इल्म जैसे हम फिलॉसफी है ना, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज, तो हम कहाँ-कहाँ से इल्म हासिल करने हैं. तो हमारा पहला था कि हमने रिवील नॉलेज, दूसरा था कि हमने फॉर एग्जांपल हम तो कहते हैं ना कि वही किसी अल्लाह ताला ने हमें, तो क्रिश्चियंस कहते हैं कि वो जो हमें ख्वाब आते हैं फिर जब कभी हमारा विजन होता है कि ये ऐसा हो जाएगा, या उनकी बाइबल जो है वो भी रिवील्ड नॉलेज है, इनके वो कहते हैं कि हमारे जो ख्वाब है वो भी रिवील्ड नॉलेज है कि उनमें भी कोई ना कोई चीज़ हमें नजर आ जाती है या हमें उन चीज़ों का पता चल जाता है. इज एवरीथिंग क्लियर. उसके बाद हमारी इंट्यूशन आ जाता है. इंट्यूशन जो है कि कभी आप लोग को क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप बता दें. आप लोग कहते हैं कि बुरे ख्याल, बुरे ख्वाब, ऐसा मुस्लिम में हमेशा ये कहती हूँ कि अगर हम चारों फूल पढ़ लें आज तक कुर्सी पढ़ के सुने तो हमें बुरे ख्वाब और बुरे ख्याल नहीं आएंगे. ठीक है.
हाँ, वो शैतान समटाइम्स हमें डाइवर्ट करता है हमारी अटेंशन को, तो डेट्स दरमियान आती हैं। नॉलेज दरअसल इस पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि जो ख्यालात नमाज में थे। अभी आप अपनी ये जो थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है ना, उस पे अटेंशन पे करें। Authority. It relies on the information that has been obtained from, यानी कि अथॉरिटी जो नॉलेज का तीसरा जरिया है, द थर्ड सोर्स इज अथॉरिटी। क्लियर? पहला सोर्स क्या है हमारा? वही। दूसरा है इंट्यूशन, इल्हाम। तीसरा है अथॉरिटी। ये हम नॉलेज obtain करते हैं बुक्स से। हम जनाब हम जनाब हम बात करेंगे। अच्छा, तो इज इट रिसर्च? नो, इट्स नॉट रिसर्च। रिसर्च ये है कि हम अपनी ढूंढे कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कि एक नई चीज हमें कोरोना, खुदा ना खास्ता पहले तो हमने उसे क्योर होने की चीजें की, अब हम कोई ऐसी चीजें कि कोरोना की वैक्सीन हम कर ले, तो डेट इज द रिसर्च। तो रिसर्च की भी तो कोई ना कोई बेस होती है ना। हम अगला नॉलेज तभी अटेन कर सकते हैं, हमारे नेक्स्ट नॉलेज की जो फाउंडेशन है वो हमारे प्रीवियस नॉलेज पे होती है। अथॉरिटेटिव नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। जो अथॉरिटेटिव नॉलेज है ना, जैसे हम कहते हैं ना, अल्हाम या इंट्यूशन जो है वो उसका हमारे इंटेलेक्ट से कोई, हमारे दिमाग से, हमारी कॉग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अथॉरिटेटिव नॉलेज जो होता है वो हमारे एक्सपर्ट से, वो हमारा उसका ताल्लुक हमारे इंटेलेक्चुअल से भी होता है, उसका ताल्लुक हमारी रिसर्च से भी होता है। इट इज ओनली एज वैलिड एज द assumptions on which it stands. जब भी आपने नॉलेज लेना है तो सबसे पहले कोई ना कोई हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, और उसके बाद देयर आर सर्टेन assumptions जिन पे वो नॉलेज स्टैंड कर रहा होता है। And it is only as valid as the assumptions on which it stands. A source of information have limitations. उनके जो सोर्सेस है ना नॉलेज के, उनकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अब हमारा थर्ड वन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द अथॉरिटी, दैट कम्स फ्रॉम द बुक्स, दैट कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट सुपर पावर्स, सुप्रीम पावर्स। अच्छा, अब हमने अथॉरिटी को भी डिस्कस कर लिया कि उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ना, दैट इज रेशनल। कि हम नॉलेज अपना रेशनल से लेते हैं। रेशनलिस्ट होल्ड दैट एट लीस्ट सम ऑफ आवर नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम द रीजन। वो कहते हैं कि हमारा कुछ नॉलेज जो है वो किसी ना किसी, रेशनलिस्ट बिलीव दैट नॉलेज कैन बी अराइव्ड एट थॉट थ्रू द यूज ऑफ रीजन। कि कोई ना कोई रीजन होगी तो कोई ना कोई नॉलेज आएगा ना। The view that reasoning or logic is the central factor in knowledge is known as the rationalism. फोर्थ सोर्स ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं रेशनल या रेशनलिज्म। वो कहते हैं किसी ना किसी चीज का, इनके जो भी हम नॉलेज लेते हैं उसका कोई ना रीजन होता है। रीजन प्लेज अ रोल इन द ऑब्जर्वेशन, and so the mind is more fundamental than the sense in the process of knowledge acquisition. कि हम कोई किसी चीज की कोई रीजन होती है ना, तो देन हमें जो नॉलेज गेन होता है, तो उस नॉलेज को हासिल करने में हम कहते हैं कि उसकी वो जो नॉलेज होता है ना वो हमारे लिए बड़ा पावरफुल होता है। Someone who views the world through the lens of revealed knowledge has a belief and then attempts to force all the evidence to support the conclusion. जैसे कुछ लोग हैं जो पूरी दुनिया को किसी रिवील नॉलेज से देख रहे हैं कि कोई वही अल्लाह ताला की आई, वो हमारी कायनात में आई और हमने उससे अपना नॉलेज लिया। लेकिन फिर हमने रेशनलिस्ट होके ये देखा कि हाँ, इस हर चीज की कोई ना कोई वजह तो है ना। सूरज निकलता है फिर सूरज गुरूब हो जाता है, उसकी कोई ना कोई वजह है ना, ठीक है ना। तो कोई चीज भी बगैर वजह के नहीं है। तो रेशनलिस्ट, हम एक रेशनलिज्म से भी अपना नॉलेज को लेती हैं। someone who views the world through the lens of the revealed knowledge, कि कोई जैसे हमारे
उलमा है, यानी कि वो पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान पाक भेजा हुआ है उसकी नज़र, लेकिन वो फिर भी देखते हैं कि उसकी भी तो कोई ना कोई वजह है ना, कि कोई नॉलेज किस तरह है, कैसी है. Someone who views the world through the lens of rational knowledge would at the evidence and either admit he did not know. कि वो चाहता है, हम चाहते हैं, हम हर चीज़ का कोई ना कोई सबूत चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिवील नॉलेज है तो आइदर उसका भी उस नॉलेज का भी कोई सबूत है या नहीं है, या वो नॉलेज वैसे ही है. तो इसको हम रेशनलिज्म में डिस्कस करते हैं. क्लियर? अब मुझे आप लोग पॉइंट्स देंगे कि हमने इस टाइम पे को डिस्कस किया है. मैं वैसे आपको एक दफा बताऊंगी. फर्स्ट हमने रिवील, रेवलेशन, सेकंड इंट्यूशन, थर्ड हमारा था अथॉरिटी एंड फोर्थ था रैशनलिज्म. तो कि आपको इन चारों में डिफरेंस पता चल गया या नहीं? आज ये हमारा लास्ट नॉलेज रह जाएगा जो हम हासिल कर रहे हैं, डेट इज द एम्पिरिकल नॉलेज. जो एम्पिरिकल नॉलेज है ना, वो एविडेंस इन सर्च ऑफ ए कंक्लूजन होता है ना. हम रैशनल नॉलेज, तो रैशनलिस्ट होते हैं वो अपोज्ड ऑन एक्टिव माइंड दैट एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस एंड गिव इट मीनिंग. जो रैशनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि रीजन फॉर ए बिहेवियर, आपका अगर बिहेवियर पॉजिटिव है उसकी भी कोई रीजन है, और अगर आपका बिहेवियर नेगेटिव है तो उसकी भी कोई. इनके रैशनलिस्ट हमेशा हर चीज की कोई ना कोई रीजन देते हैं. Our last one is the empirical knowledge. The empirical knowledge is an attempt to discover a basis for our knowledge in sense experience. कि जो चीजें हम अपने senses से लेते हैं ना, we have 5 senses and sometimes we say we have 6 senses. कि empirical knowledge, this one is our lost knowledge. कि वो ये है कि वो नॉलेज जो हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं, that is the empirical knowledge. It finds the source are confirmed by the evidence of sensory experience. It is thus derived from the use of 5 senses. We have अच्छा, either is it possible कि sometimes हमारी 5 senses जो है उनसे हम जो नॉलेज लेते हैं वो नॉलेज 100% ठीक होता है. समटाइम हमारी सेंसेस जो हैं वो हमें ऐसा नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं जो ठीक नहीं होता. फॉर एग्जांपल, हम रोड पे जा रहे होते हैं, दूर रोड पे हमें हमारी आंखों से नजर आ रहा होता है कि कहीं लग रहा है कि आगे कहीं पानी गिरा हो, लेकिन वो पानी नहीं गिरा होता. तो समटाइम्स इसमें आगे पीछे हो जाता है. इट इज द एविडेंस ऑफ द सेंस दैट गिव्स मीनिंग टू द एम्पिरिकल नॉलेज. देयर कैन बी नो नॉलेज आउटसाइड द सेंस एक्सपीरियंस. एम्पिरिकल कहते हैं, एम्पिरिकल नॉलेज वाले कि सारा नॉलेज जो भी हम गेन करते हैं वो हम अपनी सेंस एक्सपीरियंस से ही गेन करते हैं. It is fundamentally rooted on sense experience. It stands to reason that observation and experimentation will also be basic to empirical knowledge. यानी कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं या हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं वो भी हमारे एम्पिरिकल नॉलेज की बेस होगा. क्लियर? अब जी एम्पिरिकल जो नॉलेज है, एम्पिरिकल एविडेंस क्या है? Rooted in objective reality and gathered directly or indirectly through the senses rather than through the personal belief or hunches. कहते हैं कि हम अपनी सेंसेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चीज ले रही हैं, वो नॉलेज ले रही है. Empiricists describe a somewhat passive mind which act in mechanical way. यानी कि वो एक्टिव माइंड नहीं, पैसिव माइंड जो होता है वो एक मैकेनिकल वे में काम कर रहा होता है. Empiricists propose that the experience, memory, association, and heroism determine not only how a person thinks and acts, but also his or her morally. कि वो मॉरली कैसा है, उसके एक्सपीरियंस या मेमोरी. और ये कहती हैं कि मैकेनिकल कॉज ऑफ बिहेवियर, कि हमारे सेंसेस के कि हमारा जो बिहेवियर है ना उसका कोई ना कोई मैकेनिकल कॉज है कि हमारा बिहेवियर किस वजह से खराब है या वो है. तो इसका तो हमने टुडे वी डिस्कस द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज. द फर्स्ट वन इज रेवलेशन, द सेकंड इज इंट्यूशन, the third one is authority, the fourth one is rationalism,
The fifth one is empirical. Empirical knowledge वो knowledge जो हम अपनी observation से लेते हैं, हम अपनी senses से लेते हैं, that is the empirical knowledge. तो अब हम इसकी ना सारों को एक दफा रिपीट कर लेते हैं कि revealed knowledge is the basis, phenomenal properties as well as the belief in God. Revealed knowledge or revelation is that body of knowledge that exists इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्सेप्शन. क्योंकि हमारा कॉन्सेप्शन नहीं, वो जस्ट हमें अल्लाह ताला की सुपर नेचुरल आसमानी सहीफे सारा कुछ वो वैसे वहाँ से, उसमें हमारी अपनी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. रिवील नॉलेज डिस्क्राइब एज अ नॉलेज दैट गॉड हैज डिस्क्लोज्ड, वो नॉलेज है जो अल्लाह ताला ने इंसान को डिस्क्लोज किया है. In the Islamic tradition, the Quran is held to be an authoritative and revealed source of. देखिए हम इस्लामिक ट्रेडिशन में जो कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अथॉरिटेटिव वे भी है कि हमें बता दिया गया है कि इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो हम किस साइड पे जाएंगे, और किस अगर हम बुरे कामों में पड़ेंगे तो हम किस साइड पे जाएंगे. Intuitive knowledge is the ability to utilize and acquire knowledge without the use of reason. कि उसकी कोई रीजन नहीं होती, हमें इल्हाम होता है तो उसकी कोई रीजन कोई वजह नहीं होती. And immediate recognition of the agreement of or disagreement of two ideas, it yields perfect certainty. जब हम एक certainty में चले जाते हैं ना, probability में चले जाते हैं, जब हमारे पास दो रास्ते आ जाते हैं तो हमें इंट्यूटिव नॉलेज जो होता है वो बताता है कि किस साइड पे जाना है और कैसे जाना है. इंट्यूशन इज अ वे ऑफ नोइंग समथिंग that one cannot really explain because it transcends ordinary sense experience or reason. इनकी intuition किसी चीज को जानने का वो अमल है जिसकी वजह से one cannot really explain. हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, why we are doing all this, और इसको करने या ना करने की क्या वजह हो सकती है कोई, क्योंकि हर काम करने या ना करने की कोई सॉलिड रीजन होती है. तो इंट्यूशन की नहीं हम बता सकते बस जी मेरा दिल चाहा मुझे पता चला. इंट्यूटिव नॉलेज इज सपोज्ड टू बी ग्रेटर, फाइनर, हायर देन द mere exercise or reason, but we are not clearly told why. इनकी जो इंट्यूटिव नॉलेज होता है ना वो सही होता है, लेकिन हम उसके रीजन नहीं बता सकते. इसी तरह अथॉरिटेटिव नॉलेज की तरफ आ जाते हैं. ये इट इज डाइव फ्रॉम द रिटन वर्क, यानी कि कोई काम है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई रिपोर्ट्स हैं, और वहां से हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो अथॉरिटेटिव नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. उसके बाद आ जाता है हमारा रैशनलिस्ट. बिलीव्ड नॉलेज कैन बी अराइव थ्रू द यूज ऑफ रीजन. वो कहते हैं कि कोई ना कोई रीजन होती है तो हम उसके लिए, यानी कि कोई ना कोई रीजन थी तो हमने कोरोना पे रिसर्च करनी शुरू की, कोई ना कोई रीजन थी तो हम वैक्सीन बनाते हैं, कोई ना कोई रीजन है तो हम एक जगह से दूसरी जगह उड़ने के लिए हवाई जहाज बनाते हैं ना. तो रैशनलिस्ट कहते हैं कि देयर इज रीजन. उसके बाद जब अ प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रैशनल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द थ्री लॉज ऑफ रैशनैलिटी के हम क्रिटिकल थिंकिंग, हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी इसी वजह से करते हैं कि ये सारे काम. उसके बाद जी एम्पिरिकल नॉलेज इज नॉलेज था हमारा नेक्स्ट वन ऑफ सच फैक्ट्स एज वन मे मीट इन एक्सपीरियंस. पॉजिटिविस्ट स्कूल डेवलपमेंट अंडर द स्पीशीज ऑफ दिस एम्पिरिकल. इनके मोस्टली जो हमारा एम्पिरिकल नॉलेज होता है ना, उस दिस वन इज द अटेम्प्ट. कहते हैं कि एम्पिरिकल जो नॉलेज होता है ना कि वो हम अपनी सेंसेस से, अपनी अथॉरिटी से, अपनी फाइव सेंसेस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी अजम्पशन से हम सीख रहे होते हैं ना. क्लियर? यस जी. आप तक आज सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्लियर हो गए हैं.